समझ में आया वो पहला? यस सर। Yes. चलिए नेक्स्ट टूल बताइएगा। मान लीजिए पेरेंट क्लास है। आई एम रिमूविंग ऑल दिस थिंग, इसको अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये पेरेंट क्लास है। आई एम डिफाइनिंग अ कंस्ट्रक्टर इन अ पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। आई एम राइटिंग parent class constructor. What we writing? Parent class constructor. Now we define child class. कौन सी class बनाए? Now we create a child class. In the child class we defining child class constructor. I'm defining child class constructor. Class constructor. Now come into the parent child class. I'm removing all this line of code. Just understand the concept. Okay. We have two class, parent class and child class. I'm creating the parent class object. P equal to new parent. When you create parent class object, tell me which class constructor involved? Parent class. Actually, when you create an object of any class, that class constructor will invoke. If you create any class object, only that class constructor will invoke, because a constructor can be used to initialize that class data member. Using one class constructor, you can't initialize another class data member. Remember this one. If you have A class and B class, if you have A class and B class, if you want to initialize A class data member, you need to invoke which class constructor? A class constructor you need to invoke. If you want to initialize B class data member, you need to invoke B class constructor. Using A class constructor, you can't initialize B class data member. Using B class constructor, you can't initialize A class data member. This is the rules. Now, okay, A parent class constructor is invoked. Let's in case of parent class constructor, I'm created child class object. So let's tell me, I'm created child class object. Which class constructor invoked? Both are parent and child. Why both are? Because we have created only child class object. So only child class object needs to be created. Constructor need to be. But here both class constructor invoked. Actually, when we create any object of the class, only that class constructor needs to be executed. But here child parent class constructor and child class constructor both are invoked. Why? Actually, understand. When you have inheritance, suppose this is a parent class, this is a child class. When you create a parent class object, only parent class memory will be allocated, and then parent class constructor need to be executed. But when you create a child class object, so child class object, when you create a child class object, before existing of the child class object, parent class existence need to be required. Before existing of the child class object, parent class existence needs to be required. In the case of inheritance, so whenever you create a child class object, how many object is created? Only one object is created. Only child object is created. But in this child object, first of all, parent class data member memory will be allocated. So in this object, what happened? Before allocating the child class data member, first allocate parent class data member. First allocate parent class data member. Parent class data member. And then which class data member needs to be allocated? Then child class data member memory will need to be allocated. And then child class data member memory needs to be allocated. And once memory is allocated, then you need to initialize the memory. So how you can initialize the object? Using constructor. So which class first you need to initialize? Parent class. So
To initialize the parent class data member, parent class constructor needs to be executed. Parent class constructor needs to be executed. And then to initialize child class data member, we need to execute child class constructor needs to be executed. So remember this point, whenever you create the child class object, this thing happening in the background. If you have inheritance, if you created the child class object, first only one object is created, but in that object, first of all, memory will be allocated for parent class data member, then memory will be allocated for child class data member, and to initialize the parent class data member, we need to invoke parent class constructor, and to initialize the child class data member, we need to invoke child class constructor. So that's why first of all parent class constructor invoke, and then child class constructor will invoke. So here first parent class constructor invoke, and then child class constructor will invoke. Okay, I'm made some changes. I'm make a parent class parameterized constructor. Let's save it and watch here. Now you got it the error. Why you got it the error? वहाँ पे हमने डेटा मेंबर डिक्लेयर नहीं करे इसलिए. Actually, when you create a child class object, first of all parent class constructor invoke before executing the child class constructor. But here parent class constructor is a parameterized constructor. Parent class constructor is a parameterized constructor. Parameterized means it requires some value. Someone needs to supply a value to this constructor. Actually, implicitly JVM will not supply a value because this is a user-defined value. User can supply any value. So what we need to do? We need to supply some value. So how we can supply a value? एक मिनट कॉपी एक मिनट है. Hello. यस Okay. So actually parent class is a constructor, is a parameterized constructor. Parameterized constructor require a value. Actually, when you parent class has a zero parameterized constructor, so how control transfer from child class constructor to the parent class constructor? Okay, let's try to understand. When you create a child class object, control go to the child class constructor. Control go to the child class constructor. In the child class constructor, it will check it has any parent or not. Yes, it has a parent. So call the parent class constructor. How we can call parent class constructor from the child class constructor? By using super method. Here we have super method. Super method is used to call a parent class constructor from the child class constructor. What the use of the super method? Super method is used to call a parent class constructor from the child class constructor. Actually, parent class constructor is a zero parameterized constructor. So here just we require to call super method without passing any argument. So now run it, and now you can check. You got parent class constructor and child class constructor. Before it, we are not writing super method in the child class constructor. Still we got the same output.
if parent class constructor is a zero parameterized constructor, if parent class constructor is a zero parameterized constructor, then writing super method is optional in the child class constructor. If you want, you can write, otherwise compiler implicitly will write. So what is And the even use if of? it's a user defined constructor. नहीं, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर नहीं, आई एम सेइंग अगर पेरेंट क्लास के पास जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में सुपर लिखना ऑप्शनल है। सुपर मेथड Okay, की हेल्प से हम लोग क्या कॉल कर सकते हैं? सुपर मेथड कैन बी यूज्ड टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो किसकी हेल्प से कॉल कर सकते हैं? सुपर मेथड से, फ्रॉम चाइल्ड क्लास। ओके, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। बात समझ में? सुपर कर सकते हैं जब उसमें कोई पैरामीटर दे रखा हुआ है सर। अगर अगर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जीरो पैरामीटराइज है तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर सुपर लिखना ऑप्शनल है, आपकी मर्जी लिखो या ना लिखो। लेकिन अगर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है, मान लीजिए ये पैरामीटराइज है इंट ए, तो इसका मतलब अब चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर सुपर लिखना मैंडेटरी हो जाएगा। क्यों? चाइल्ड पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू चाहिए होगी, तो जैसे आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, कंट्रोल कहाँ आएगा? चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में आएगा। चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर ने सुपर लिखा, सुपर में हमने लिखा और यहाँ पे हमने वैल्यू कुछ पास कर दी। सुपर मेथड क्या करेगा? ये इसके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। किसके? चाइल्ड क्लास के। तो चाइल्ड क्लास के पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को पास करेगा और ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ये वैल्यू सप्लाई करेगा। तो ए में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये 10 कहाँ से सप्लाई किया गया? चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से। बात समझ में आई? यस सर। तो सुपर मेथड का क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ सुपर मेथड? सुपर मेथड का यूज है कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को आप कॉल करा सकते हो चाइल्ड क्लास से। नहीं 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 नहीं, सुपर कीवर्ड एक अलग होता है। देखिए, सुपर एक कीवर्ड होता है विदाउट पैरेंथेसिस, वो डिफरेंट होगा। एक सुपर मेथड है, इसका यूज होता है कंस्ट्रक्टर कॉल करने में। सुपर मेथड इज यूज टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में पहली लाइन क्या होनी चाहिए? सुपर मेथड होनी चाहिए। अगर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज है तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में सुपर लिखना ऑप्शनल है। अगर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में सुपर लिखना मैंडेटरी है। सुपर सर की ऐसे चलो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। सुपर मेथड की हेल्प से आप पेरेंट क्लास के फीचर चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। सुपर मेथड की हेल्प से सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के पर्पज से यूज किया जाता है। सुपर मेथड का यूज किसी का? कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। कौन सा कंस्ट्रक्टर? पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। किसके कहां से अगर कॉल करना है? चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से। अगर चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? सुपर मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सुपर मेथड। जरा देखिए, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्लास ए है, हमने मल्टीपल क्लासेस बनाए। ए क्लास है, ए क्लास के पास एक मेंबर इंट ए है, इसको इनिशियलाइज करना थ्रू कंस्ट्रक्टर है ना, इंट ए। तो हमने कहा दिस डॉट ए इक्वल टू ए। फिर हमने क्लास बनाई बी क्लास, बी क्लास बनाए, बी क्लास हमने बनाए। बी किसको इनहेरिट कर रहा है? ए को। और बी ए को इनहेरिट कर रहा है। बी के पास भी अपनी एक प्रॉपर्टी बी, ये खुद की उसकी प्रॉपर्टी है बी। अब सुनिएगा ध्यान से, बी क्या करेगा? एक मेंबर ले रहा है और इसने कहा भैया अपने मेंबर को हमें इनिशियलाइज करना, दिस डॉट बी इक्वल टू बी। फिर एक सी है, सी किसको इनहेरिट कर रहा है? सी इज इनहेरिटिंग टू द बी। सी के पास अपना मेंबर है, सी इज इनहेरिटिंग टू द बी। लेट्स से सी इज इनहेरिटिंग टू द बी। एक्सटेंड बी, इसके पास अपना मेंबर है सी, ये अपना कंस्ट्रक्टर बनाया, इसने पैरामीटर लिया सी और ने कहा दिस डॉट सी इक्वल टू सी।
अब इसके बाद हमने एक मेथड बनाया वाइड डिस्प्ले। ये क्या करेगा, देखिए सबसे मोस्ट बॉटम चाइल्ड कौन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे पास C. तीन तीन क्लासें हैं, एक ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ए को कौन इनहेरिट कर रहा है, बी, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। और बी को कौन B. इनहेरिट कर रहा है, ए, सॉरी बी को कौन इनहेरिट कर रहा है, सी। दिस इज द ए क्लास एंड दिस इज द बी क्लास एंड दिस इज द सी क्लास। ए के पास कौन सा मेंबर है, ए के पास अपना कंस्ट्रक्टर है, सुनिएगा। अब ए के पास जो प्रॉपर्टी हो बी के पास भी चली जाएगी, बी के पास जो होगी वो सी के पास भी चली जाएगी। इसलिए सी क्लास हमने एक मेथड बनाया डिस्प्ले, जिसमें हम तीनों की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। ए जो मेंबर है वो ए क्लास का है, बी जो मेंबर है वो बी क्लास का है, सी जो मेंबर है वो सी क्लास का है। यस या नो? सी जो मेंबर है वो किस क्लास का, सी का। अब हमें क्या करना है, देखिए बी को हमें क्या करना है, जब सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो किस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, सी क्लास के कंस्ट्रक्टर कंट्रोल कहां जाएगा, बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाएगा। जैसे बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में कंट्रोल आएगा तो इसका भी कोई पेरेंट हाँ है तो ए क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाएगा। जब आप सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो सी क्लास इसका जो पेरेंट उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसको पैरामीटर चाहिए, तो सी क्लास से आपको एक वैल्यू सप्लाई करनी होगी इसके पेरेंट को, और बी क्लास से इसके पेरेंट को वैल्यू सप्लाई करनी होगी। इसका मतलब है, देखिए हमें कितनी वैल्यू पाए, जब हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट पास क्रिएट करेंगे तो हमें दो वैल्यू ऊपर भेजनी है। तो हमने क्या किया, सी क्लास के कंस्ट्रक्टर में तीन पैरामीटर लिए, इंट ए कामा बी कामा सी। हमने क्या लिए, तीन पैरामीटर लिए। ए और बी वैल्यू हमने क्या की, ए और बी वैल्यू हमने इसके पेरेंट क्लास को पास कर दी। सुपर मेथड कॉल किया ए कामा बी, जो ए और बी वैल्यू रिसीव करेंगे इसके पेरेंट को पास करेगा। सी का पेरेंट कौन है, बी, तो बी क्या करेगा, दो पैरामीटर लेगा। बी क्लास में दो पैरामीटर डिफाइन करेंगे, एक वैल्यू से तो खुद को इनिशियलाइज कर लेंगे और एक वैल्यू इसके पेरेंट क्लास को पास कर देंगे, जो हमने रिसीव की है इसके पेरेंट क्लास को पास कर देंगे, किससे, सुपर से। अब क्या करेगा, ए रिसीव करेगा वैल्यू और ए अपने मेंबर को इनिशियलाइज कर देगा, बी अपने मेंबर को इनिशियलाइज कर लेगा और सी अपने मेंबर को इनिशियलाइज कर देगा। चलिए देखिए, तो अब पब्लिक स्टैटिक हमने यहीं पे मेन मेथड क्रिएट किया, लेट वाइड मेन स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट। अब सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सी ओबीजे इक्वल टू न्यू सी, तो हमने तीन वैल्यू पास की, 10 कामा 20 कामा 30। तो सी क्या लेगा, सी का क्लास का कंस्ट्रक्टर तीन वैल्यू लेगा, जिनमें से एक वैल्यू का यूज करके अपने मेंबर को इनिशियलाइज करेगा, बाकी दो अपने पेरेंट को भेज देगा। इसका पेरेंट दो रिसीव करेगा, जिनमें से एक वैल्यू अपने के लिए यूज करेगा और एक वैल्यू अपने पेरेंट को ये भेज देगा। एक एक वैल्यू अपने पेरेंट को भेज देगा, किसको भेज देगा, ए को। नाउ ए अब उस वैल्यू को रिसीव करेगा बी से और अपने मेंबर को इनिशियलाइज करेगा। मतलब सी क्या करेगा, दो वैल्यू पास कर रहा है किसको, तीन वैल्यू, दो वैल्यू पास करेगा किसको, बी को। तो बी क्या करेगा, दो वैल्यू लेगा सी से, एक वैल्यू तो खुद यूज करेगा और एक वैल्यू अपने पेरेंट को पास कर देगा। अब देखिए तीनों क्लास के डेटा मेंबर इनिशियलाइज हो गए ना। अब हम लोग सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो ओबीजे डॉट डिस्प्ले मेथड कॉल कीजिए। देखिए तीनों क्लास के डेटा मेंबर इनिशियलाइज हो गए, ए बी सी। तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर कंट्रोल चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर, सी क्लास के कंस्ट्रक्टर आएगा। सी क्लास के कंस्ट्रक्टर से हम लोग किसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, बी क्लास का। अगर बी क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है तो हमें वो पैरामीटर सप्लाई करने होंगे किसको, बी क्लास के कंस्ट्रक्टर को, बाय यूजिंग सुपर मैथड। तो देखिए यहाँ पे सुपर मैथड की हेल्प से क्या कर रहे हैं, ये कॉलिंग द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। जब भी चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो तो हम लोग यूज करते हैं सुपर मैथड। समझ में आया? सर ये थोड़ा सा
एक बार रिपीट कर देंगे। जब से हमने ये इसका कंस्ट्रक्टर बनाया सुपर का, हाँ, मतलब कैसे सुपर बनाया हमने कंस्ट्रक्टर ये नहीं वाला? है, दिस इज नॉट कंस्ट्रक्टर। सॉरी, मेथड। सुपर मैं ये क्या कर रहा है, ये कॉल सुपर मेथड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कहाँ से कॉल कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से। अगर चाइल्ड क्लास के राइट। कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन में क्या लिखेंगे, सुपर मेथड। क्या लिखेंगे, ठीक है सर। सुपर सुपर मेथड। मेथड। सुपर मेथड। अगर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज नहीं है, नॉन पैरामीटराइज है, तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के पहली लाइन में सुपर लिखना ऑप्शनल है। आप लिखो या नहीं लिखो, कंपाइलर ऑटोमेटिक लिख लेगा। आप नहीं लिखो, राइट सर। कंपाइलर लिख देगा। लेकिन अगर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो यूजर को सुपर मेथड लिखना मैंडेटरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको वैल्यू सप्लाई करनी होगी। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को वैल्यू चाहिए कुछ, वो वैल्यू क्या चाहिए वो आपको बताना होगा। तो उस केस में सुपर लिखना मैंडेटरी होगा चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर। सर हमने ये अपने आप से ही जो बी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, वो हमने अपनी मर्जी से ही पैरामीटराइज्ड बनाया है, जो 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। हाँ, आप अपने मर्जी, मान लीजिए हमें कोई जरूरत, बी क्लास के पास कोई मेंबर है, उसको अपने मेंबर को इंस्लाइज करना, क्या इंस्लाइज करना आपको वो मेंबर बताने होंगे। वैल्यू सप्लाई कीजिए, जो वैल्यू सप्लाई करो उन्हीं को अपने आप को इंस्लाइज करेगा। इससे पहले हमने पैरामीटराइज्ड बनाने के मतलब जो बी कंस्ट्रक्टर था, उसमें हमने एक ही आर्गुमेंट पास किया था, जिससे हमने बी हाँ के हाँ। अब देखिए डेटा क्यों यहाँ पे, मेंबर को हाँ क्यों, अब दो लोगों ने, क्योंकि इसको भी अपने पेरेंट को कुछ सप्लाई करना है ना, राइट सर। इसलिए यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, दो पैरामीटर लेने होंगे, एक तो अपने लिए, एक अपने पेरेंट के लिए सप्लाई करना होगा। ओके, पेरेंट को भी इनिशियलाइज करने के लिए। पेरेंट को एक ही वैल्यू पास कर देना, क्योंकि इसका पेरेंट भी पैरामीटराइज है ना, यस सर। तो इसको अपने पेरेंट को भी तो कुछ वैल्यू सप्लाई करनी होगी। इसलिए सी का जब हम जो फाइनल ऑब्जेक्ट है, देखिए इसको भी एक वैल्यू चाहिए, इसको भी एक वैल्यू चाहिए, और इसको भी, सी को भी एक वैल्यू चाहिए। जब जब मोस्ट बॉटम ड्राइव का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसको 3 वैल्यू पास करेंगे। एक वैल्यू सी खुद को इनिशियलाइज करेगा, बाकी 2 बी को दे देंगे। बी क्या करेगा, एक वैल्यू अपने लिए यूज करेगा, बाकी जो एक बच्ची वैल्यू वो अपने पेरेंट को दे देगा। आई समझ में, बताइए कैसे बताओ। हेलो। हेलो। नहीं आ रही सर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, हाँ बताइए। आवाज चली गई थी सर। बीच में आपके यहाँ आवाज चली गई। अब आ रही। हेलो। यस सर। हाँ बताइए, आया समझ में, नहीं आया। यस सर। सुपर यस सर, आप मैथड, तो सुपर मैथड का यूज किया, ये समझ में आया। हाँ, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। कॉल करने के लिए। कहाँ से, चाइल्ड क्लास से। चाइल्ड चाइल्ड क्लास क्लास के से। कंस्ट्रक्टर से। चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर। सर ये सुपर कीवर्ड और मेथड दोनों ही है ना? सुपर कीवर्ड का काम अलग है, सुपर मैथड का काम अलग है। ओके। अभी हम लोग सुपर मैथड देखते हैं। सुपर मैथड का काम है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है, किसका, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, कॉल। कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी बोल सकते हैं ना, कि जैसे आप सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, पहले बी का, पहले ए, पहले कंट्रोल सी से बी में जाएगा, बी से ए में जाएगा, फिर पहले ए का एग्जीक्यूट होगा, फिर बी का, फिर सी का। ये किसकी हेल्प से हो रहा है, सुपर की हेल्प से, सुपर मैथड की हेल्प से। तो सुपर मेथड भी मतलब कंस्ट्रक्टर का ही मतलब काइंड ऑफ हाँ सेम मेथड ही हो गया, मतलब हाँ, सुपर कंस्ट्रक्टर मैथड और मतलब, हाँ इसके सुपर का मतलब, इसका सुपर मतलब पेरेंट, और मतलब इसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करो। अगर आप पेरेंट का चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर। सुपर लिख रहे हो, इसका मतलब सुपर मतलब पेरेंट, इसका पेरेंट, और पेरेंट। इसका पेरेंट है का कंस्ट्रक्टर, मैथड है मतलब वही कंस्ट्रक्टर, इसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करो। राइट और सर। सर और सर अगर मैं पैरामीटर इसमें आर्गुमेंट चेंज कर देता अगर, दो हों और हम भी चाइल्ड में दो लेके चल रहे हैं, तब भी इसका सुपर करना पड़ेगा। क्या, जैसे पेरेंट क्लास में हम दो पैरामीटर लेके चल रहे हैं और चाइल्ड में भी दो लेके चल रहे हैं, तो सुपर में हमें दो और अलग से डालने होंगे। यस, क्योंकि चाइल्ड पेरेंट को जितने चाहिए उतने सप्लाई करने होंगे ना, अगर उतने नहीं सप्लाई करोगे एरर नहीं आएगा। पेरेंट को जितनी वैल्यू चाहिए उतनी सारी वैल्यू सप्लाई करनी होगी ना। बात समझ में आई, ठीक है जी सर। कोई कंफ्यूजन।
सर सुपर की जो मेथड है उसकी आर्गुमेंट सीक्वेंस भी कंस्ट्रक्टर के बराबर होना चाहिए। नहीं देखिए, आर्गुमेंट्स की जो आर्गुमेंट लिस्ट तो डिपेंड होगी रिक्वायरमेंट पे, आपको कितने आर्गुमेंट पेरेंट को भेजने हैं भाई, वो आर्गुमेंट अकॉर्डिंग टू लिस्ट। द पेरेंट कंस्ट्रक्टर। हाँ, आपको कितने ऊपर भेजने हैं उसके पेरेंट को, तो जितने उसको जरूरत है राइट। उतने आर्गुमेंट लिस्ट, और आपको भी अगर यूज करने हैं उनमें से, तो आपको कितने चाहिए, हाँ ऊपर सर। कितने भेजने हैं, ये तो आपको डिसाइड करना होगा ना। मतलब सर अगर एग्जांपल के तौर पर देखें, पेरेंट में दो है और हम एक ही भेजना चाहे तो एक ही वैल्यू लेगा वो। तो एक नहीं भेज पाओगे, एरर आ रहा है, क्यों? दो रिक्वायर्ड पैरामीटर है, अगर दो पैरामीटर उसे चाहिए तो दो ही आपको पास करने होंगे, ऐसा नहीं है कि आप एक ही भेज, एरर आएगी, आप देख ओके लीजिए। अगर उसे दो चाहिए तो दो ही वैल्यू, ये रिक्वायर्ड पैरामीटर, रिक्वायर्ड का मतलब उतने तो भेजने पड़ेंगे, ऑप्शनल नहीं है कि आप ये दो चाहिए एक भेज दो, ऐसा नहीं हो नहीं, सकता। मैंडेटरी है, पेरेंट में डिक्लेयर कर रखे हैं हाँ, डिक्लेयर पैरामीटर। उतने भेजने पड़ेंगे, उसमें ऑप्शनल का हाँ फॉर्म उस नहीं है। हाँ मतलब चाइल्ड के जितने हैं उतने प्लस पेरेंट के जितने हैं उतने। हाँ, पेरेंट को जितने चाहिए उतने सारे के सारे भेजने होंगे, क्योंकि पैरामीटर ये आपके क्या होते हैं, रिक्वायर्ड पैरामीटर होते हैं, मतलब उतने, जब भी आप फंक्शन बनाते हो या मेथड बनाते हो, फंक्शन जितने पैरामीटर लेते हो वो सारे के सारे उतने भेजने होते हैं ना, अगर उनमें से एक भी नहीं पास करो यस। तो सिग्नेचर मैच ही नहीं करेगा। अच्छा सर, इसका कोई एक रियल ऐसा कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिखा दो सर। चलिए, प्रोजेक्ट आपको बनाना है, हम सिनारियो पूरा समझा रहे हैं, अब यूज आपको करना है, पूरा सिनारियो हम समझा रहे हैं, अब ये सिनारियो आपको पूरा इंप्लीमेंट करके लाना है, इसमें यही यूज होगा पूरा। चलिए समझते हैं। व्हेन वी शुड गो फॉर इनहेरिटेंस, एक्चुअली इनहेरिटेंस कब यूज करना चाहिए। मान लीजिए हम कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले हम देखेंगे भैया इस प्रोजेक्ट में हाउ मैनी एंटिटीज इज पॉसिबल। मान लीजिए इस प्रोजेक्ट में एक स्टूडेंट एंटिटी चाहिए, और जैसे एंटिटी आपने आइडेंटिफाई कर ली, तो फिर आपको आइडेंटिफाई करने होंगे एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज इनको रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट की एक आईडी चाहिए, नेम चाहिए, और एड्रेस चाहिए, फोन नंबर चाहिए, क्लास चाहिए, फीस चाहिए, ग्रेड चाहिए, मार्क्स चाहिए। फिर दूसरी एंटिटी हमने आइडेंटिफाई की टीचिंग स्टाफ। टीचिंग स्टाफ के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट चाहिए, ने आईडी, नेम, एड्रेस, फोन, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट, सैलरी एंड डेजिग्नेशन। एक एंटिटी हम और आइडेंटिफाई की, नॉन टीचिंग स्टाफ। तो नॉन टीचिंग स्टाफ को भी एक आईडी एट्रीब्यूट चाहिए, नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, फोन नंबर चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए, मैनेजर आईडी चाहिए, सैलरी चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए। तो हमारे पास टोटल हाउ मेनी एंटिटी वी आर आइडेंटिफाई, देयर आर थ्री एंटिटी वी आर आइडेंटिफाई, वन इज स्टूडेंट, अनदर इज अ टीचिंग स्टाफ, and third one is a non-teaching staff. So we have created three different entities and defining attribute in each entity. Once you created and once you define what you are here, tell me, once you define and once you created, what scenario here you feel, what you are feeling here, this is structure is a correct structure. Actually, when you created a entities, you are here feel you have defined number of times same property in a different class. Actually, student, teaching and non-teaching staff, all entity require this common property. So this property, how many times you need to define? You need to define 3 times, because this property is common to each entity. But still what you are doing, you are replicating, you are duplicating. Actually, property name is a common for all the entities. So there may be chance when you create a new project, there are several entities and most of the entities have required common features. If most of the entities require common feature, it is not better approach to define common feature in each entity separately. It is not better approach. And now after that, what your other fields, and now we feel teaching and non-teaching staff also having some common features. Salary and designation is a common property in both teaching staff and non-teaching staff. So now we have modified the whole structure. First of all, we are trying to identify which entity is common for which properties, which feature is common for all entities. So we are picking all those common features from all the entities and defining one common place. So here we create one common place.
I give the common place name is a person and define one class as a person and define this all common feature inside this person class. These properties are common for all entities, student, teaching, and non-teaching. Actually, I give the class name as a person. I give a common name. Why? Because student may be person, teaching staff may be person, and non-teaching staff also person. So that's why I'm giving a common name. And now we define student entity. In the student entity, we are defining only student specific feature. The features, the properties which required only for student, whatever features which are required specific, which are specific only for student, that feature we are defining. But student feature also required. But students also required this feature also ID, name, person, address, ID, name, address, and phone number. But student class contain only class, fees, grade, and marks. If student class contain this feature also, what student class needs to do? Student class needs to inherit which class? Person class. Person class. Once student inherit the person class, so all the feature automatically come into the student class. Now we define staff as a class. In this staff, we defining the common feature, salary and designation. Now we inheriting staff class to the person class because staff also requires this feature ID, name, address, and phone. So now we define this. Now we inheriting staff to the person. Now we define teaching staff and non-teaching staff. In teaching staff, we are defining only teaching specific feature, and non-teaching staff we are defining. And non-teaching staff, we are defining only non-teaching staff specific feature. But teaching staff also requires staff features. So teaching class also needs to inherit staff class, and non-teaching also needs to inherit non-teaching staff. Non-teaching class also needs to inherit staff class. So now watch here the structure. Whatever common feature you have, now you are not replicated those features in each class separate. So here we draw this structure. Here we have person is the top class, top parent, and a child class. If anyone required person class feature, that class needs to inherit person class. So teaching staff inherit which class? Staff class. But indirectly, person class feature come into the staff class, and from the staff class, though person class feature come into the teaching class and non-teaching. So now teaching contains this person class feature, staff class feature, and its own specific feature. So now when you create a student class object, so student class is specific, how many student class specific feature required? We require 4 student specific, but its parent required how many specific feature? 4. Essentially, when you create a student class object, you require to pass 8 parameter, and student class use 4 parameter to initialize our data member, and 4 parameter need to pass its parent class constructor to initialize person class data member. बात समझ में आई? सर इसको थोड़ा सा हिंदी में यस सर। बात समझ में आई कि नहीं? इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बता दीजिएगा। देखिए पर्सन क्लास के पास कितने फीचर हैं? 4 फीचर है ना। अब स्टूडेंट क्लास को अगर ये फीचर चाहिए तो स्टूडेंट क्लास को पर्सन क्लास में इनहेरिट करना होगा। तो स्टूडेंट क्लास के पास सिर्फ हम स्टूडेंट स्पेसिफिक फीचर डिफाइन करेंगे। अगर स्टूडेंट को ये फीचर चाहिए तो स्टूडेंट क्लास इनहेरिट कर ले। जब आप स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और स्टूडेंट क्लास के मेंबर को इनिशियलाइज करना चाहते हो तो स्टूडेंट के जो स्पेसिफिक फीचर हैं वो केवल 4 ही हैं। 4 फीचर तो इसके पेरेंट्स 4 है ना। तो ये मेंबर इनिशियलाइज करने के लिए हमें पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक करना होगा कि नहीं करना होगा? पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक करना होगा पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए। और चाइल्ड क्लास पर्सन एक्सटेंड स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट एक्सटेंड पर्सन, स्टूडेंट करेगा ना एक्सटेंड। हाँ स्टूडेंट एक्सटेंड करेगा, स्टूडेंट एक्सटेंड पर्सन। यस सर। आप स्टूडेंट का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो कंस्ट्रक्टर में कितनी वैल्यू पास करनी होगी? 8। क्यों? 4 वैल्यू ये अपने लिए यूज करेगा अपने मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए और 4 वैल्यू अपने पेरेंट को भेज देगा, कहेगा जिससे हम आईडी
नेम, एड्रेस और फोन नंबर इनिशियलाइज करें। आया कि नहीं यहाँ आया? पर सुपर सर, बात समझ में आई? हाँ सर, यहाँ पे सुपर मेथड कॉल हो जाएगा ना सर? कॉल करना पड़ेगा, मैंडेटरी है सर। तो इसी तरह सर ये सर स्टाफ एक्सटेंड पर्सन, तो स्टाफ को सुपर वाला दोबारा रिपीट करेंगे सर। टीचिंग एक्सटेंड स्टाफ और नॉन टीचिंग एक्सटेंड स्टाफ दो क्लास हो जाएंगे। ये तो समझ में आ गया। हाँ बोलिए। सर एक बार सुपर वाला दोबारा रिपीट कर देंगे प्लीज। देखिए कहाँ गया सुपर वाला, ये है तो जैसे एक क्लास थी ना, एक क्लास के पास एक मेंबर था, ये क्लास ए का मेंबर है, तो इस क्लास के मेंबर को इनिशियलाइज करने के उस क्लास का कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करते हैं किसी क्लास के मेंबर को। अब बी क्लास बनाई, बी क्लास से इनहेरिट किया ए को, तो ये बी तो खुद का मेंबर है, एक तो उसका मेंबर आ गया होगा, लेकिन जब हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें दो पैरामीटर पास करने होंगे, एक तो इसको खुद को इनिशियलाइज करने के लिए, और एक वैल्यू ये अपने पेरेंट क्लास को भेज देगा। कैसे? सुपर कंस्ट्रक्टर। सुपर से हम लोग क्या कॉल कर सकते हैं? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा ना, क्योंकि हमें पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना है, तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक करना होगा। चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सुपर मेथड। अब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जब इन्वोक करेंगे तो देखेंगे पेरेंट क्लास को कितने पैरामीटर चाहिए, कितने पैरामीटर यहाँ पे चाहिए पेरेंट क्लास को? एक ही चाहिए था ना, तो इन्वोक करते समय कितने पैरामीटर वैल्यू, कितने वैल्यू पास करेंगे? एक ही वैल्यू पास करेंगे। तो जब चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को जितने पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं उतने पैरामीटर हमें पास करने होंगे। आई बात समझ में नहीं? तो ये स्ट्रक्चर आपको पूरा क्रिएट करना है, ये आपको पूरा इनहेरिटेंस है कि जैसे हम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उसके डॉट डिस्प्ले मेथड कॉल करें तो पूरी डिटेल प्रिंट हो जाए। सर जैसे स्टाफ एक्सटेंड पर्सन कॉल करेंगे और फिर टीचिंग एक्सटेंड स्टाफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली टीचिंग क्लास जो है पर्सन को भी एक्सटेंड कर लेगी। देखिए पर्सन से स्टाफ में फीचर आएंगे, स्टाफ से कौन से फीचर आएंगे? टीचिंग में आ जाएंगे। टीचिंग में बाय डिफॉल्ट और नेम आईडी और ऑटोमेटिकली एड्रेस आ जाएंगे, क्योंकि वो देखिए पर्सन से स्टाफ में आ गया ना। अब टीचिंग का पेरेंट कौन है? स्टाफ है, तो स्टाफ के पास आईडी नेम है ना, तो स्टाफ से कहाँ चला जाएगा? टीचिंग और नॉन टीचिंग में चला जाएगा। क्लियर? जी सर। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट बनाना है, ये पूरा। ये अगर आपने पूरा अच्छे से एक बार बना लिया तो आपको सुपर का भी यूज समझ में आ जाएगा, इनहेरिटेंस का भी अच्छे से यूज आ जाएगा। इनहेरिटेंस कब यूज करना चाहिए? इनहेरिटेंस समझ में आया? इनहेरिटेंस जब यूज करना चाहिए जब पेरेंट की कोई प्रॉपर्टी हमें एक्सटेंड करनी हो। हाँ नहीं देखो ये पूरे पहले हमने इस पूरे जब कोई काम रेपिटेशन में हो रहा है। देखिए अभी हमने ये देखिए बनाया था ना, पहले अलग अलग 3 क्लास बनाई थी, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। 3 आप अलग अलग क्लास बना के सबके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फीचर कॉल कर सकते हो, लेकिन वो बेटर स्ट्रक्चर नहीं होगा। लेकिन अब पूरे स्ट्रक्चर को हमने देखिए क्या हमने कहा, नहीं इस तरह से पूरे स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दिया। आया कि नहीं आया? तो पहली वाली स्लाइड चीजें रिपीटेड हो रही है इसलिए हमें एक्सटेंड का यूज करना है। मैं लोग को सुपर क्लास सुपर यूज करना है। बताइए किसी को कंफ्यूजन, कोई डाउट? मोस्टली यूज होता है इनहेरिटेंस का जब कोई चीजें रिपीटली यूज हो रही है और हमें बार बार करके एक बार बना करके रीयूज कर लो, है ना? यस। चलिए ये स्ट्रक्चर आपको सब पूरा बना के लाना, पूरा कंप्लीटली। सर ये क्वेश्चन मिलेगा कहाँ पे, मतलब? अभी हम शेयर कर देना ग्रुप पे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।